welcome to our show, Vaishali ma'am. And I'm excited. I was very much excited that when you will be on our show because your what we say aura, like you're so patient. आपके face पे ऐसा लगता है कि आप झगड़ा भी करोगे तो प्यार से. I hope, first of all, thank you so much for inviting me on this wonderful show. I've seen your shows, really like the interviews. And patience, yeah, patience one comes with age, I think. So, yeah, one needs to be patient. And as an artist, also, one needs to be patient. In life, also, one needs to be patient. Yeah, yeah. That only So when I I would say saw your life has taught pictures, me I was patience. like कि हाँ ये बहुत ही peaceful. Your face is so peaceful. You're so beautiful. Like ऐसे लगता नहीं कि you ever had a fight also, is it? Oh my God. No, I've had lots of fights. Yeah, but I don't lose my temper very often, definitely. And even my fights are very quiet. I'm more of a sulky kind than Okay, the aggressive. Yeah, yeah, true. that's good. So, ma'am, I just want to say, as you have seen our show, our tagline is "Share your passion." So, what is passion according to you? आपके हिसाब से passion क्या है? Passion, it starts off as an interest in something and then turns into something that you can't live without. And for me, that is passion. And passion for me is my art, because you cannot separate me from my art. um, I'm constantly thinking about what I'm going to do, what I'm going to paint, what inspires me. A word may inspire me, the nature may inspire me, some incident may inspire me. So there's nothing particular that I can say, "Okay, oh, this thing inspires me." It could be just anything. तो श्योरली हम जरूर आपके साथ थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना चाहेंगे. हाउ इट स्टार्टेड दैट यू स्टार्टेड आर्ट एज अ पैशन. Okay, so initially, my mother's an artist, so the atmosphere at home was always full of canvases and colors, and she was all constantly at it. She used to paint. She used to Okay. love painting. Yeah. So I picked up paints very early in life. Though I was never allowed to use oil paints or her colors for a long, long time. As a child, she wouldn't let me touch it because, of course, I would spoil them. But I think when I was around 11 or 12, I started painting in oils. Because those days there were no acrylics. Right. We used to have only oils at home. So actually, I started oil painting on my own, just watching her. But my topics, the way I painted was completely different from what she did. Right. So I think that that individuality or that way of thinking was right there from the beginning, uh, as even as a child. Because I used to love to design my own clothes. Everything I did had to be different, or was different. So initially, then after I did my graduation in psychology honors from Delhi University. Okay. After that, I did actually that was what my parents wanted me to do. What I wanted to do was actually Nirmala Niketan, home science, dietitian, fashion designing, something basically JJ School आपने of Arts, which was a big बगावत नहीं no-no की. in those days. You have not protested that I want to do this, not that. I was a very obedient child. I couldn't, I never back answered my parents or Good. even fought with them for anything. No. Those days were different. Right. The children today are very independent, Right. and they can voice their opinions. Those days we were taught, I'm 61 now. So during my teenage or younger ages, we were taught to obey our elders, and what the Right. elders said was the best for you. So you had to do what was the best. And because my father was he was in the intelligence bureau, so it was a transferable job. So I've changed 9 schools, 2 colleges. Wow. So I've learned to adapt a lot, and that actual adaptability has helped me in my art. True. Because you need to adapt to newer things, adapt to your environment. Correct. It everything influences you, everything makes a difference in your life.
And as a person, you are an artist as you are a person. So I think evolving, becoming a more aware person helps me in my art. That's Definitely. true. Like as you said, your dad was having a transferable job, तो बहुत easy होता होगा हर जगह new. I think it is very interesting because you get to know more people and you get to learn very much observance and all. So how you thought? कभी आपको ऐसे लगा कि मेरे friends छूट जाते हैं when you change the place? हाँ, बहुत सेंस ऑफ लोनलीनेस होता था क्योंकि हर 2-3 साल में ट्रांसफर्स होती थी. Okay. तो ऐसा होता था कि हाँ, और फिर जो न्यू कमर है उसको ही अडाप्ट करना पड़ता है. जो वहां पे सेटल्ड है वो अडाप्ट नहीं करते हैं. वो आपको हाँ, you have to literally घुसाव into the scene to be accepted. तो एज अ चाइल्ड बहुत ट्रबलसम होता था. फिर स्कूल के स्टैंडर्ड मीडियम्स भी अब बदलते रहते. इंग्लिश मीडियम था ऑफ कोर्स, आईसीएसई से सीबीएसई, सीबीएसई से एसएससी, फिर आईसीएसई. तो यू नो बहुत कंफ्यूजन होती थी माइंड में कि कैसे करे, कैसे कोप करे. सो व्हेन आई वाज टिल द 5th स्टैंडर्ड आई वाज इन दिल्ली, तो मराठी तो था नहीं वहां पे. फिर बॉम्बे चली गई, तो 6 में बॉम्बे गई तो मराठी तो कहाँ का कहाँ पहुंच गया था. हाँ, कंपल्सरी, और मराठी तो 1st स्टैंडर्ड से होता था तब. तो बहुत डिफिकल्टी होती थी मुझे कोप अप करने में. तब लगता था कि बहुत मुश्किल है, ये मुश्किल है, फ्रेंड्स छूट रहे हैं, और फिर वो 2-3 साल के कॉन्टैक्ट्स नहीं रहते. कॉन्टैक्ट जो पहले के होते हैं वही रहते हैं. तो माय बेस यूज्ड टू बी बॉम्बे बिकॉज़ माय ग्रैंडपेरेंट्स वर देयर. Okay. तो हर छुट्टी में मैं वहां जाती थी. तो एक्चुअली आई वुड से आई बिलोंग टू बॉम्बे. फ्रेंड्स वही के अभी भी है मेरे. Okay. तो वो है, वो जो रूट्स हैं वो बॉम्बे के हैं. That's very nice. और शादी होने के बाद फिर पुणे आ गई. Okay. तो वहां पे, लेकिन अब तो पुणे में भी रूट्स हैं. तो वैसे कंप्लेन करने के लिए बहुत चीजें हैं और ना कंप्लेन करने के लिए भी चीजें हैं, कि अच्छी भी चीजें हुई, बुरी चीजें आदत पड़ जाती है, एक्सेप्ट कर लेते हैं. तो जैसे ये आर्ट, आपने कहा कि आर्ट का आपको पैशन शुरू हुआ, तो wherever you went, तो आप कैसे सोचते थे कि मुझे ये ड्रॉ करना है? what was your favorite part of drawing, like कि मुझे ये ड्रॉ करने में मजा आता है, ऐसा कुछ? तो इनिशियली सीस्केप्स बहुत अच्छे लगते थे. When I started, मैं बहुत सीस्केप्स करती थी, क्योंकि आई थिंक दैट अटैचमेंट टू बॉम्बे वाज देयर. सो वो ध्यान में आता था, रख के सीस्केप्स होते थे मेरे काफी सारे. फिर उसके बाद लैंडस्केप्स एंड रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स बहुत करती थी. चाकू पोर्ट्रेट्स, पेंसिल पोर्ट्रेट्स, एक्टर एक्ट्रेसेस के बहुत करती थी. तो वैसे पेंसिल ड्राइंग के वगैरह प्रैक्टिस हो गई. लेकिन मेरा बेटा होने के बाद मुझे ऐसे लगा कि मुझे थोड़ा फॉर्मल ट्रेनिंग लेना चाहिए. क्योंकि क्या है, किसी भी चीज की लैंग्वेज आपको आती है, लेकिन ग्रामर सिखानी पड़ती है. True. वैसे आर्ट में भी टेक्निक सीखना पड़ता है, क्योंकि आप नहीं तो फिर घूम जाते हो कहीं. तो इसलिए फिर मैंने मेरा इंटरमीडिएट दिया मेरा बेटा होने के बाद. उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया, फाइन आर्ट्स में डिप्लोमा किया, फैशन डिजाइनिंग में. फिर आई वाज प्रैक्टिसिंग फैशन डिजाइनिंग फॉर अबाउट 10 years. उसके साथ साथ ऑफ कोर्स आर्ट तो चलता रहा, कभी रुका ही नहीं. लेकिन जब मेरा बेटा बड़ा हुआ तो ऐसे सोचा कि नहीं, थोड़ा उसके तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फैशन डिजाइनिंग इज वेरी वेरी डिमांडिंग. You have to be constantly at it. Constantly at it. और demands of clients meet करने पड़ते हैं, deadlines meet करनी पड़ती हैं. तो फिर that took a back seat. और फिर painting, drawing, फिर मैंने ना luckily मुझे पुणे में बहुत अच्छे आर्टिस्ट मिले जिन्होंने मुझे बहुत सिखाया. तो उनके अंडर जो मैंने सीखा है, that is something that has helped me so much in my technique. Right. क्योंकि आर्ट तो अपना है, खुद का है, खुद के इमोशंस होते हैं, खुद के एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कैनवस पे उतरते हैं. लेकिन जो टेक्निक सिखाए गए, क्योंकि मैं देखती थी पेंटिंग्स आर्टिस्ट की और सोचती थी ये कैसे किया होगा, ये कैसे किया होगा, वो पता नहीं चलता था.
लेकिन जब टेक्निक सीखे तो मैंने सोचा अरे ये तो बहुत इजी है, ये तो हो सकता है। तो इसलिए मैं अभी भी सबको कहती हूँ कि टेक्निक सीखो, गो टू अ गुड कॉलेज जाओ या फाइन आर्ट्स का डिप्लोमा करो, डिग्री करो, ये जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन जो टेक्निक है वो किसी से सीखो। राइट। तो आपने कहा ये बहुत that सही बात है कि वी नो द लैंग्वेज बट द ग्रामर पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक वो एक very important. शेप मिल जाता है चीज को, राइट। That actually divides the professional from an amateur. राइट। ट्रू। वो सेपरेशन पॉइंट जो है कि मैं हॉबी आर्टिस्ट हूँ और मैं प्रोफेशनल, वो क्या है, सेपरेशन लाइन क्या है? इट्स द टेक्निक, इट्स द ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज। मैम पता चला था बीच में आपकी हेल्थ ठीक नहीं थी, हाउ आर यू नाउ, आपकी हेल्थ वगैरह? स्टिल रिकवरिंग, इट्स अ वेरी स्लो रिकवरी फ्रॉम कोरोना वायरस। आई थिंक किसी को भी ना हो, ऑनेस्टली। वायरस हो जाता है, बुखार हो जाता है, हॉस्पिटल से निकल जाती हो, लेकिन जो रिकवरी है बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट, स्पेशली एज वाइज। यंग लोग हो जाते हैं रिकवर। हाँ, बिकॉज व्हेन आई केम टू नो अबाउट दिस कि हमारा जिस दिन सेशन था तभी, तो आई वाज वेरी शॉक्ड। मैंने बोला ऐसे कैसे हो गया एंड ऑल। तो टीम वाज सेइंग कि पता भी नहीं चलता कैसे हुआ, पता बिकॉज यू थिंक यू आर बीइंग वेरी केयरफुल बट यू डोंट नो वेयर यू गेट इट फ्रॉम। तो ऐसी बात है। एनीवे, अभी ऑन द वे टू रिकवरी चल रहा है, सब जो कुछ करना है वो सब कर रही हूँ। पेंटिंग भी जारी है। तो हाउ वाज योर और एक्चुअली मुझे कोरोना वायरस के टाइम सोचने को भी बहुत वक्त मिला, एंड एक्चुअली लॉकडाउन हैज बीन अ बून टू मी, क्योंकि आई फाउंड अ न्यू मीडियम, डिजिटल्स। जो हाँ, तो मेरे अभी सब काम जो है वो एक्चुअल बैकग्राउंड सब डिजिटल में करती हूँ मैं, और उसके बाद उस पर काम करती हूँ। तो वो जो लेयरिंग का जो काम होता है, इनिशियल काम होता है, वो बच जाता है, इजी हो जाता है। तो और पहले डिजिटल से बहुत डर लगता था कि पता नहीं होगा नहीं होगा, क्योंकि आई एम वेरी स्केयर्ड ऑफ कंप्यूटर्स आल्सो। मैं नहीं यूज कर सकती, हैंडल कर सकती, भूल जाती हूँ। वो भी कोर्स किया था लेकिन सब भूल जाती हूँ, वो नहीं याद रहता। तो फिर लेकिन दिस हैज रियली हेल्प मी इन एडवांसिंग माय पेंटिंग, क्योंकि आजकल डिजिटल का वर्ल्ड हो गया है। राइट। इंडिया छोड़ के अब्रॉड सब आर्टिस्ट डिजिटल में काम करते हैं। many artists are showing in the Facebook also my digital painting and all. मतलब एक अलग लुक आ जाता है। हाँ, एंड जैसा पहले सिर्फ ऑयल्स थे, उसके बाद एक्रिलिक्स आ गए, वैसे ही डिजिटल आ गया है अभी। और यू नो वन हैज टू एक्सेप्ट कि जमाना बदलता है, एंड वन हैज टू गो अलोंग विद द फ्लो। रेजिस्ट करके कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आप पीछे छूट जाते हो। करेक्ट। जो आर्टिस्ट बोलते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट को मान्यता ही नहीं देते, लेकिन दुनिया कहीं के कहीं निकल गई। ट्रू, सही बात है। हाँ, आप अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो दुनिया तो आगे बढ़ेगी ही, तो आप ही रह जाओगे, बढ़ेगी, आप पीछे के पीछे रह जाओगे। और खुद के लिए भी अच्छा है ना, सीखना नई चीज कुछ पाना अच्छी चीज है। मैम आपकी जो आर्ट गैलरी है पूना में, हम उसके बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे कि वो कैसे आइडिया आया आपको कि स्टार्ट करना चाहिए? हाँ, तो मैंने एक फ्रेंड के लिए आर्ट गैलरी, उसके पास स्पेस थी एंड शी वांटेड टू एस्टैब्लिश एन आर्ट गैलरी टू रेंट इट आउट। वो खुद आर्टिस्ट नहीं थी, तो मैंने उसको सेटअप करके दिया। देन मैंने सोचा दूसरों को करके दे रही हूँ, मैं खुद की क्यों ना करूँ आर्ट गैलरी। तो मेरी एक जगह थी जो हम छोड़ के, बंगलो था तो पुराना हो गया था तो छोड़ दिया था, तो मैंने वो फुल रेनोवेट किया। एंड माय आइडिया वाज टू एनकरेज artists from vernacular backgrounds and from the villages of Maharashtra. क्योंकि क्या है, आर्ट में लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनका ड्रॉबैक ये हो जाता है कि आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं लेकिन बात नहीं कर सकते, दे कैन नॉट अप्रोच पीपल, दे कैन नॉट मूव आउट ऑफ महाराष्ट्र। और फिर यू नो हाउ इट इज अ वेरी एलिटिस्ट काइंड ऑफ थिंग, जो जिनके पास पैसे है वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो अफोर्डेबल आर्ट भी हो, जो आर्टिस्ट अपकमिंग है जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है उनको प्लेटफॉर्म दो। तो इसके वजह से मैंने गैलरी स्टार्ट की। फिर वो जो अमेरिका में तब मैं होके आई थी, तो वहां पे मैंने एक बार में आर्ट एंड सिप करके एक सेशन किया था 45 मिनट्स का, जहाँ आर्टिस्ट टेक्स यू थ्रू अ पेंटिंग एंड इन 45 मिनट्स यू हैव अ बेसिक पेंटिंग। तो मैंने वो किया।
तो काफी कॉर्पोरेट्स को चाहिए होते हैं एक्टिविटीज टू रिलैक्स देयर, टू हैव अ गुड टाइम विद देयर एम्प्लॉइज, तो वैसे किए. And then I used to hold a lot of workshops in my gallery related to everything connected with art. तो वो fine art हो, writing हो, music हो, dance हो, तो सबके workshops मैंने organize, theater किया organize. तो because everything, all art is actually a part of a whole. Correct. आप आर्ट्स को सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि हाँ, तो मैंने जुगलबंदी भी की म्यूजिक के साथ, डांस के साथ. बहुत इंटरेस्टिंग रहा वो. तो मुझे लगता है ऐसा कुछ होना चाहिए. तो एक दूसरे के आर्ट के बारे में भी पहचान हो जाती है, जान सकते हैं कि हमको लगता है अरे ये तो बहुत इजी है, वो तो बहुत ही, वो कोई भी ऐसा नहीं है. उसके लिए जो तपश्चर्या, उसके पीछे जो डेडिकेशन होता है, वो बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है हर चीज के लिए. तो मैम आपकी, तो ऐसी मेरी गैलरी पैदा हुई, 5 साल चली और अभी वो रेनोवेशन के लिए गई है. तो देखूंगी अभी स्टार्ट करना है, फिर से नहीं करना है. तो मैम दैट्स वेरी नाइस जो आपने ये आइडिया बोला कि हाँ सही है कि बहुत जनों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उनके अंदर बहुत टैलेंट होता है फिर भी. तो आप जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपका लॉकडाउन बहुत ऑसम गया, तो व्हाट एग्जैक्टली यू स्पेंड योर लॉकडाउन, किस तरह से आपने स्पेंड किया? So actually I was with my mother because she's old, so I'd gone to pick her up from Bombay to bring her back. और मैं पहुंची शाम को और दूसरे दिन लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया. तो we were stuck in Bombay. मेड्स नहीं, कुछ नहीं. तो फिर पूरा सुबह तो काम करने में चला जाता था. Then I did a lot of online courses. तो आर्ट अप्रिसिएशन के, हाँ. सो और अगर जो मैं बोला डिजिटल, उसके लिए बहुत टाइम मिला प्रैक्टिस करने, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर नहीं होता है. तो काफी सारे एप्स डाउनलोड करके, ट्रायल्स करके, वैसा टाइम मेरा बहुत अच्छा गया, एक्चुअली बहुत अच्छा गया, पीसफुल गया, क्योंकि कोई आता जाता नहीं था. घर का काम सुबह 11 बजे तक खत्म करके पूरा दिन मिल जाता था. कोई किसी से मिलना नहीं है, किसी से बात करनी भी नहीं है, फोन पे कितना बात करेंगे. तो फिर आई थिंक फॉर मी इट वाज वेरी फ्रूटफुल. लोगों को बहुत तकलीफ हुई, आई अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस होता है लोगों का. तो इट वाज ट्रबलसम फॉर देम, बट पर्सनली आई मेड यूज ऑफ इट टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ एंड माई पैशन. And that was the time तो अभी भी मुझे हम अपने होता ना कि अपने लिए सोच पाए, लाइक होता है हमेशा वी आर बिजी विद कभी ये स्टफ कभी वो स्टफ, वी आर नेवर थिंकिंग ऑफ आवरसेल्फ टू क्रिएट आवरसेल्फ. So that was the awesome time for the same actually. कट हो गया था. lot of time for introspection मिल गया तब. Right. Who am I? What am I doing? Which direction am I going in? तो वो समय भी बहुत मिला खुद के लिए. बहुत बहुत हो जाता है. और मैम मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने कहा कि आपका एक बेटा है, तो हाउ ही टेक्स द आर्ट? उसको आर्ट बहुत दूर दूर तक संबंध नहीं है उसका आर्ट से. No, he appreciates it, that's it. But my daughter, she's a sports psychologist, but she actually is an artist who refuses to be an artist. So उसको मैं कह लो थोड़ा सा, लेकिन नहीं मिलता है उसको टाइम. उसका बेटा भी छोटा है. I've got 2 grandchildren. So बेटे को बेटी है और बेटी को बेटा है. तो आपको देख के तक my life is very busy otherwise. Thank you. क्योंकि पुणे में बेटा रहता है, बॉम्बे में बेटी रहती है. पुणे आओ तो मैं उसके साथ बिजी हो जाती हूँ, बॉम्बे जाओ तो ग्रैंडसन के साथ बिजी हो जाती हूँ. तो बहुत अच्छा टाइम जाता है. That's very nice, मैम. और मैं जरूर आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि आप जो एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं, जो अभी न्यू, जैसे आप कह रहे हो कि अभी परस्यूइंग आर्ट एज अ पैशन एंड अ प्रोफेशन थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, तो व्हाट यू विल सजेस्ट टू देम? So those who are studying art formally, हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जो आर्ट एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे लैक्यूने हैं. Right. अभी
जो आर्टिस्ट को आगे बढ़ने से ऑब्स्टेकल हो जाता है, वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसपे हाँ, तो मैंने एक्चुअली करिकुलम भी बनाया है। अभी लॉकडाउन है इसलिए कुछ हो नहीं रहा है, होपफुली उसका कुछ होगा। तो पर्सनालिटी को डेवलप करने का मतलब है नॉट ओनली हाउ यू लुक, द वे यू टॉक, उनको इंग्लिश सिखाओ, उनको अलग अलग लोगों के साथ कैसे बातें करनी है, हाउ टू अप्रोच पीपल, हाउ टू राइट योर बायोडेटा, सीवी, इसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। सही बात क्योंकि अगर एंट्री करनी है किसी भी एग्जीबिशन में या कंपटीशन में, यू हैव टू फिल इन योर फॉर्म, गिव योर सीवी, राइट एन एसओपी, तो वो सब बहुत डिफिकल्टी हो जाती है उनको। और फिर जो इंग्लिश मीडियम में या जो पॉलिश्ड हैं, वो लोग आगे निकल जाते हैं, और ये बहुत टैलेंटेड लोग हैं लेकिन बच्चे हैं, लेकिन पीछे रह जाते हैं। राइट, होता है बहुत बार। बात नहीं बनती है। ग्रेजुएट होके भी दे आर नॉट नोइंग टू राइट, होता ना एक फॉर्मेट है रिज्यूम का, दे आर नॉट नोइंग टू राइट। नहीं मालूम है उनको, और तो फिर फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। देन दे मूव अवे फ्रॉम आर्ट, कोई टीचर्स बन जाते हैं, कोई क्लासेस लेते हैं, एंड दे मूव अवे फ्रॉम आर्ट। आर्ट तो पीछे छूट जाता है, लोगों को सिखाने में जिंदगी निकल जाती है, तो फिर फ्रस्ट्रेशन भी आता है ना, कि हमारा आर्ट तो किसी ने देखा ही नहीं, ऐसे हो जाता है। हाँ, तो मैंने कॉलेजेस में अप्रोच किया है कि ये ऐसा करिकुलम भी रखे, एक पार्ट ऑफ द करिकुलम। राइट, फिजिकल फिटनेस आता है उसमें, योगा आता है, ये सब, क्योंकि माइंड भी सेटल्ड होना चाहिए आपका। जो बच्चों का तितर बितर होता है, दे डोंट नो व्हिच डायरेक्शन टू गो इन, तो वो काउंसलिंग भी होना चाहिए। ये सब चीजें बहुत जरूरी है आजकल के जमाने में, क्योंकि इतना फास्ट है ये वर्ल्ड अभी। तो टू कीप अप यू हैव टू हैव दीज थिंग्स इन योर हैंड। सिर्फ आप अच्छे आर्टिस्ट हो उससे अभी मतलब नहीं है, नहीं चलेगा। यू हैव टू हैव लॉट मोर टू बिकम अ गुड आर्टिस्ट। तो मैम, आपकी आर्ट गैलरी इस बारे में क्या इनिशिएटिव लेना चाहेगी, अगर फ्यूचर में आप कुछ ऐसा करना चाहें? जैसे जिस तरह से मैं आपसे बात करी, मुझे पता चल रहा है कि आपने बहुत सारे एस्पेक्ट से सोचा हुआ है, तो व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द सेम? So I would ideally like to use this curriculum that I have prepared. If the colleges don't use it, I would like to start it. Okay. As a separate topic. हाँ. कि ये भी करो. Right. तो आप अपनी आर्ट गैलरी के थ्रू ये सिखाना जरूर चाहेंगे? हाँ, जो फिनिशिंग स्कूल्स में जाते हैं ना, एलिट स्टूडेंट्स फिनिशिंग स्विट्जरलैंड चले जाते हैं फिनिशिंग स्कूल्स में, so this is like a finishing school for an artist. Obviously. Yeah. So I think it would help, because even when you're explaining, आप जब आपकी पेंटिंग एक्सप्लेन कर रहे हो, अगर वो नॉन हिंदी है, नॉन महाराष्ट्रियन है, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो लैंग्वेज तो आनी चाहिए, यूनिवर्सल लैंग्वेज इंग्लिश। अब बोलो या ना मानो इंग्लिश है, तो बेसिक इंग्लिश तो आनी चाहिए, और अपना खुद का जो पेंटिंग है वो एक्सप्लेन करने की उसमें ताकत चाहिए। करेक्ट। एंड स्पेशली विद एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि लोग आके बात करते हैं आपसे कि आपने क्या सोचा, आप क्या सोच रहे थे जब ये पेंटिंग कर रहे थे। तो अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो तो वो पेंटिंग इज एम्प्टी, उसमें कोई मतलब ही नहीं रहता फिर आर्टिस्ट व्यूअर के लिए। राइट, दैट्स नाइस मैम। और ये सही बात है कि बहुत बार ऐसे होता है एब्स्ट्रैक्ट में कि वी आर इमेजिनिंग आवरसेल्फ कि ये होगा, ये होगा, तो वी शुड नो हाउ टू एक्सप्लेन, मतलब आपने क्या सोच के ड्रॉ किया है वो पता होना चाहिए। या तो देयर इज यस ट्रू, नो उसमें डिबेट भी होता है कि आप टाइटल रखो या ना रखो। ये आर्टिस्ट में बहुत डिबेट होता है, तो मैं तो सोचती हूँ टाइटल रखना चाहिए, क्योंकि आपको व्यूअर को ना एक डायरेक्शन देनी है। ट्रू। आप हाँ, और अगर आप ही क्लियर नहीं है माइंड में कि आपने क्या किया है, तो फिर आप क्या एक्सप्लेन करोगे? तो दैट टाइटल इज फॉर यू एंड फॉर द व्यूअर आल्सो। यस मैम। मैम, आपकी कोई फेवरेट पेंटिंग है जो आप हमें दिखाना चाहें? मैंने एक यहाँ पे ना अर्लीस्ट और लेटेस्ट दोनों रखे हैं। तो मैं दिखाती हूँ तो कैसे मेरी जर्नी रही और मैंने क्या किया वो दिखाती हूँ।
very old, about must be 8 years old, 9 years old. दिख रहा है? Yes, yes, ma'am. This was inspired. This was inspired by बाजीराव मस्तानी. तो यहाँ पे वो देखकर ही समझ में आ रहा है. Very, very beautiful. हाँ. So actually the vibrancy of the sets and the jewelry inspired me to. तो मैंने ये किए 2-3 किए इस सीरीज में ओल्ड रोमांटिक कपल्स का. तो ये जो नथ है ये टिपिकल महाराष्ट्रियन नथ है. राइट. और एकदम बहुत ही अच्छा किया हुआ है मैम. लुकिंग सो डिटेलिंग है इसका. ये जो थोड़ा सा मुगल इन्फ्लुएंस वाली ज्वेलरी मस्तानी ने पहनी है. हाँ जी. So that was what inspired me, the jewelry and the latest. It's called Not Just Nudes is the topic. So this was during fragile hai, actually vulnerable. We during coronavirus हमारे पास कुछ नहीं था. Right. ना सब कुछ राशन था. हफ्ते में एक बार सामान आता था, उसमें ही गुजारा करना था. ना आपको सब करके कहीं जाना है, ना कहीं कुछ करना है. So you were so much into yourself, and we survived it. Right. Most of us survived it. So it is the frailty of the situation that I was trying to depict in this. That you can be positive about it, you can be negative about it. लोगों को बहुत depression भी आ गया है. मेंटली अनबैलेंस्ड काफी सारे चीजों के बारे में हो गए हैं. और कोई लोग किसी ने पॉजिटिवली लिया है. सो दैट वाज व्हाट आई वाज डिपिक्टिंग इन द सीरीज. दैट it's up to you how you face a situation. Right. और बहुत you don't have to have the material things that you're normally used to. You can do without them, you can live without them. And finally it is all about survival. So the way you survive is all about yourself. Yeah. बहुत ही मतलब मैम आप एकदम ही बोलते ना पॉजिटिव एनर्जी आती है आपसे काफी when we talk. And I'm feeling very good and great to talking to you. तो मैं आपसे ये Thank you so much. My pleasure. So I want to ask you कि apart from art as a passion और क्या आप enjoy करते? What are your hobbies? So till 2 years back, I got swine flu also 2 years back. So till 2 years back, I used to play tennis on an competitive level. तो टेनिस खेलती थी मैं, बहुत पैशनेट थी उसके अबाउट टेनिस. आई फील वेरी बैड दैट आई कांट प्ले राइट नाउ. अभी तो नहीं, कोई खेलता भी नहीं है अभी ज्यादा. और आई यूज्ड टू लव टू सिंग. थोड़ा सीखी भी हूँ, लेकिन अभी नहीं गाती इतना. बच्चों के लिए गाती हूँ, लोरिया गाती हूँ. हमारे जो एंटरटेनमेंट फैक्टर है ना, उसको टच कर दिया है बोल के कि आपको सिंगिंग पसंद है. आपको हमें 2 लाइनें तो सुनानी पड़ेगी. अच्छा. मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर जिक्र को गले से जलाता चला गया. मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया. बहुत अच्छा सॉन्ग चूज किया आपने. एंड इट सूट्स यू, आई थिंक सो. I think that is my motto, that you have to face life, cope up with life, and go along positively. तो मैम मैं आपसे जरूर ये बोलना चाहूंगी कि जिस तरह से आपसे बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो आप हमारी ऑडियंस को भी कुछ ऐसा 2020 से कवर अप होने के लिए कुछ पॉजिटिव सा मैसेज दीजिए. You know, it's not the end of the world. And if it is the end of the world, you have to accept it and live रोज की जिंदगी, हर एक दिन, हर एक पल जियो. Right. मजे से जियो, क्योंकि we don't know what is going to happen tomorrow. लेकिन कल की चिंता करके आप क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है. तो आज जो दिन दिया है आपको भगवान ने, उसको एंजॉय करो
और फ्रूटफुल जिंदगी जियो. Enjoy each and every moment of life. Every moment of your life, every moment, because you don't know what is coming the next day. और उसकी चिंता करने से कोई फायदा नहीं है. तो आज का दिन है ना आपके पास अभी. This moment also we are enjoying ourselves. Correct. So especially when any वैसे ही lady guests come, I feel very nice. Like you just have a ladies वाला chat. बिल्कुल बिल्कुल, वो तो खास होता है लेडीज वाला चैट. It's a stress buster actually. It's a True. stress buster. Talking to ladies बहुत मजा आता है. तो मैम मैं आपसे जरूर ये भी एक मेरा सवाल, हाँ बोलिए ना. लोग बोलते हैं लेडीज गॉसिप करती है, लेकिन ऐसा नहीं है. बहुत मीनिंगफुल टॉक भी होता है. राइट. बहुत मीनिंगफुल टॉक होता है और उसमें से बहुत हल भी निकल जाते हैं. ट्रू. या सो लोग बोलते हैं कि लेडीज गॉसिप करती हैं, तो ऐसा नहीं है. बहुत मीनिंगफुल उसमें डिस्कशंस भी होती है. गॉसिप तो होता है, मजा है उसमें भी, मिर्च मसाला लगा के हो जाता है. लेकिन जो मीनिंगफुल टॉक होता है, क्योंकि जो लेडीज सिचुएशंस हैंडल जैसे करती हैं वो अलग तरीके का होता है. मल्टीटास्किंग की आदत होती है. और हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव तो आते जाते हैं. तो फिर उसमें से हमें भी हल मिल जाता है. व्हेन यू डिस्कस, व्हेन यू ओपन अप विद योर फ्रेंड्स और योर अक्वेंटेंसेस, तो काफी सारी चीजें वहीं पे हल हो जाती है. और बहुत सारे कुछ ऐसा होता है कि हम लोग बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, तो फ्रेंड्स के साथ जब वही बातें हम डिस्कस करते हैं तो एक सॉल्यूशन निकलता है. सही कहा आपने. ये लोगों ने बहुत ही ऐसे बोल के रखा है कि लेडीज सिर्फ गॉसिप करती है, उनको नहीं पता कहीं ना कहीं आपका जो लाइफ सेट हो रहा है कहीं गॉसिप करती है. उसका ही फायदा. बिल्कुल बिल्कुल. और आई कंसिडर फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हर एक को फ्रेंड होनी चाहिए. राइट. ट्रू. क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं हम समझा नहीं पाते अपनी फैमिली मेंबर्स को, चाहे वो बच्चे हो, हस्बैंड हो. अपनी फ्रेंड को जो समझा के हमें सॉल्यूशन मिलता है, दैट इज अ डिफरेंट. बिकॉज अ फ्रेंड कैन बी वेरी ऑब्जेक्टिव. घर के लोग सब सब्जेक्टिव हो जाते हैं. खुद के बारे में सोच के फिर आपको सलाह देते हैं. तो फिर वो राइट नहीं होता है. वो सलाह राइट नहीं होती है. राइट नहीं होती अपने लिए. सही बात है. राइट. तो मैम मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगी कि आज हमारे शो का जो आखिरी सवाल है कि आपको हमारे शो पर आकर कैसा लगा. बिल्कुल स्ट्रेस बस्टर, जैसे फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं वैसे लगा. बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया. एंड इट वाज अ वेरी इनफॉर्मल टॉक. तो फॉर्मल टॉक हो तो फिर वो अलग ही हो जाता है. इट डजंट बिकम एंटरटेनिंग, इट डजंट बिकम अ कॉन्वर्सेशन, इट जस्ट बिकम्स अ क्वेश्चन आंसर सेशन. वैसे नहीं हुआ. इट वाज लाइक अ फ्री टॉक जो फ्रेंड्स के साथ करते हैं. वैसे बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. प्लेजर मैम. और हमें ऐसा ही चाहिए. एक्चुअली आई डोंट बिलीव इन द फॉर्मल टॉक बिकॉज इट्स नॉट कि आपका एग्जाम नहीं चल रहा है, मैं क्वेश्चन पूछूं आप आंसर दो. वी वांट द नेचुरल थिंग. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. Then I'll say on behalf of my team, thanks for being on our show, ma'am, and really I enjoyed this hour. Really. Thank you so much again for inviting me. I would love to have being here. Thank you so much. जरूर ये भी कहूंगी कि I would be very glad कि अगर आपकी आर्ट गैलरी कुछ न्यू इनिशिएटिव करती है तो आप हमारे शो के माध्यम से वो बताने जरूर आइएगा. बिकॉज बहुत सारे आर्टिस्ट हमें फॉलो करते हैं तो उन्हें भी बहुत हेल्पफुल हो जाएगा. जरूर जरूर जरूर. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much.